अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना खुरड़ियावाला के इलाका मकुआना में तेहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। खातून अपनी 2 बेटियों समेत बेदर्दी से कत्ल कर दी जाती है। कातिल कौन है, कत्ल किस बात पे हुआ और कातिल को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना खुरड़ियावाला के इलाके मकुआना में तेहरे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई, जिसमें एक सफ़ाक इंसान ने फायरिंग करके अपनी बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। क्यों ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं जो उन बदकिस्मत बेटियों के मामू और कत्ल होने वाली खातून के भाई हैं। कोशिश करते हैं इनसे जानने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, की नाम जी तुहाडा? मोहम्मद इजाज़। इजाज़त, की होया है सारा कुछ? एडा पूरे इलाके 'च कोहराम मच गया, तेरा कत्ल, ये ज़ालम दरिंदा जिहड़ा कि बदकिस्मती नाल तुहाडा बहनोई है, की वाक़या की पेश आया? वाਕਿਆ ਸਰ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਰੋ ਆਏ ਗਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਪ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪੀ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ। ਅੰਮੀ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ? ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ, ਝੂਠੀ ਚਿੱਕੜ ਚੁਦਰਾਹਟ, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਲਾਣਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ। ਸਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਅੜ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਅੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਚ ਗਈ, 2 ਇਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ 2 ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਸਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਲਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਉੱਠੇ ਵੀ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, IG ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਧਮਕੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਰਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਜੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਆ, ਬੀਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 12-13 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਫਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਬਾਪ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬस्त थोड़ा पर सर किया जाए। मरियम नवाज अगे मेरी दरख्वास्त। आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे इनकी हमशीरा को और 2 भांजियों को इनके ज़ालिम बहनोई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ सो कॉल्ड ईगो का लगता है, एक झूठी अना का वाक़या है जिसने 3 इंसानी जानें ले ली। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे बड़ा अलमिया ये है कि उनके 4 बच जाने वाले बच्चे जो हैं वो अभी तक खौफ का शिकार हैं। वो रातों को उठकर चीखें मारते हैं और मामू के घर में ज़ेरे परवरिश हैं। जैसे मुदई ने कहा कि अब उनके ऊपर टोटल 8 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी है। हुकूमत वक्त से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इन बच्चों के सर पे हाथ रखा जाए जिनका बाप कातिल निकला और जिनकी माँ को कत्ल कर दिया गया। हुकूमत इन पे तवज्जो दे, इनकी कुछ पढ़ाई का बंदोबस्त करे ताकि ये इस स्ट्रेस से निकल सके, ये इस ट्रांस से निकल सके, इनके दिमाग पे जो खौफ है वो दूर हो सके और ये अपनी तालीम हासिल करने के बाद एक मुफीद पाकिस्तानी शहरी बन सके। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना घोड़ियावाला के अंदर। ये वो पुलिस स्टेशन है जो शायद बर्डन के हिसाब से फैसलाबाद में टॉप पे है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि गुज़श्ता 2 माह में तकरीबन थाना घोड़ियावाला ने ऐसे पेचीदा केसेस को हल किया कि ये आजकल लाइम लाइट में है। गुज़श्ता दिनों थाना घोड़ियावाला की हदूद में एक 13 कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात रिपोर्ट होती है जिसमें एक शौहर अपनी बीवी और 2 बेटियों को फायर आर्म से यानी पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर देता है। ये खबर जंगल में आग की तरह मशहूर होती है और पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। पुलिस बर वक्त इंटरवीन करती है। आगे क्या सूरत हाल हुई, कैसे डेवलपमेंट्स हुई और कैसे महज चंद घंटों में कातिल को गिरफ्तार किया गया, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है SHO थाना घोड़ियावाला सब इंस्पेक्टर आतिफ खिची के साथ। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई बताइएगा, ये क्या केस है? एकदम से इसने हाइप पकड़ी, CM साहिबा ने नोटिस लिया, IG साहब ने नोटिस लिया और आपने, आपकी टीम ने ये साबित किया कि हमारी पुलिस पेशा वाराना महारत की हामिल है। आपने महज चंद घंटे के अंदर ये केस क्लोज कर दिया। हमारे नाजरीन को बताइएगा ये केस था क्या, रिपोर्ट कैसे हुआ और कैसे आपने डेवलपमेंट्स किए? जी शुएब भाई, मोरखा 13 अप्रैल को हमें मानफाई पर सुबह 6 बजे कॉल मसूल होती है कि 3 औरतों का कत्ल हो गया। इस इतला पर मैं अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचता हूं, तो वहां जाकर पता चलता है कि जवेद नामी जो एक शख्स है उसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को नाक कत्ल कर दिया। जब हम मौका पर पहुंचते हैं और SP साहब भी मौका पर आ जाते हैं, DSP साहब भी मौका पर आ जाते हैं, फ्रांजिक टीम को भी मौका पर बुलाया जाता है, सारे जो शहाद वगैरह हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और पता चलता है कि ये जवेद इकबाल जो है इसने अपनी
बीवी और 2 बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मुलज़म चूँकि बहुत शातिर था, उसी वक्त ये सारा वकूआ करके फ़रार हो जाता है। तो हम जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करते हैं, FIR का अंदराज करते हैं और पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसके बाद थाना में टीमें तश्कील दी जाती हैं। तो हम मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्च करते हैं, मोबाइल जो है उसका डाटा निकालते हैं, जिसके साथ उनके राब्ते वगैरह रहते हैं, उनके पीछे जाते हैं। उनको भी जब पकड़ते हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये शाम तक हम चंद 8-9 घंटे में हम जो है ना असल मुलज़म जवेद सुल्तान उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। आतिफ भाई, ये इतनी बड़ी कार्रवाई है आपकी कि अगर खुदा न खास्ता ये मुलजिम कहीं स्लिप हो जाता, ये अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटा देता, किसी और सूबे में चला जाता, राह फरार इख्तियार करता, आपकी पहुंच से दूर हो जाता, तो शायद हमारी पुलिस पे, फैसलाबाद पुलिस पे क्वेश्चन मार्क्स उठते, लोग बातें करते कि देखा हम कहते थे पुलिस रवायती सुस्ती का मुजाहरा करती है। हमने जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, हमने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया, हमें यहाँ पे मौजूद अहलकारों ने यही बताया कि यहाँ से तमाम टीमें जो हैं वो फील्ड में हैं, वो वर्क पे हैं। हमने आपसे इवन बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और आपने जस्ट एक मैसेज छोड़ा कि इन फील्ड। आपने लगातार इसका पीछा किया, कहाँ कहाँ इसने आपको डॉज करने की कोशिश की, कहाँ कहाँ राह फरार इख्तियार किया। और ये बताइएगा कि ऐसे केसेस में जो सहूलतकार होते हैं, पुलिस उनको भी मुकम्मल राउंड अप करती है? जी बिल्कुल शुएब भाई, ये बहुत बड़ा केस था। इसमें 3 औरतों का मर्डर हुआ था और इसमें वज़ीर आला साहबा ने भी नोटिस लिया हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज केस था। तो हमने, अल्लाह का फ़ज़ल है, मेहनत जारी रखी है। जब इंसान मेहनत जारी रखता और नीयत साफ़ हो, दिल लगी से काम करे इंसान, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने इसको इंटरोगेट किया है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और इसको गिरफ़्तार करके हमने पाबंद सिल हासिल किया है। अरे भाई, इसने जो वेपन यूज़ किया है, क्या वो लाइसेंस था, इसके पास लीगल आर्म था कोई, या ये नाजायज़ असला जिसे हम कहते हैं वो था? ये इसने ना अपनी बाइक बेच के, मोटरसाइकिल बेच के, इसने एक अननोन शख्स से जो पिस्टल थी वो लिया था। अरे भाई, हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस जो है वो नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन किए हुए है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि अगर आप इल्लीगल आर्म रखते हैं, आपकी पोजीशन में कोई ऐसा असलहा है जो मना है, जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसे वॉलंटियरली आके पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर सकते हैं। क्या अभी भी हम इतनी कंपेन नहीं कर पाए? क्या अभी भी हम लोगों को ये ट्रस्ट नहीं दिलवा पाए कि भाई आप ये अगर वेपन सरेंडर करेंगे आके तो ये आपके लिए अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, ये अमन को कायम करने के लिए अच्छा होगा? लोग अभी तक असलहे का शौक़ और असलहे की पोजीशन क्यों रखते हैं और क्यों अभी तक जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, ये असला जमा करवाने की सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तशहीर की गई थी। काफ़ी लोगों ने असला जमा भी करवाया है। तो अभी तक चंद लोग जो हैं उनके पास असला है और हम भरपूर कार्रवाई भी कर रहे हैं असला के ख़िलाफ़। इंशाल्लाह इसको असला से पाक करेंगे। आतिफ भाई, इस केस में जो मोटिव है वो गैरत के नाम पे है, ऑनर किलिंग हम इसे कहते हैं। ये क्या हमारी सोसाइटी को होता जा रहा है? क्या हमारा अपने अल्लाह पे भरोसा ख़त्म हो गया है? क्या हमारे यहाँ कानून का डर ख़त्म हो गया है? हम आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं कि कोई भी शख्स उठता है, वो एक फ़ॉल्स एलिगेशन लगाता है अपनी बहन, बहू, बेटी, बीवी पे और गैरत के नाम पे उसका मर्डर कर देता है। ये क्यों इतना आसान हो गया है किसी इंसान की जान लेना? क्या समझते हैं आप, बहसीयत सोसाइटी इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी शुएब भाई, ये हमारी इस्लाम से जो दूरी है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो इस तरह के क्राइम में बढ़ रहे हैं। इस्लाम हमारा एक मुकम्मल दीन है, इसमें हर चीज़ का हल है। अगर उसको उन पे शक था या वो उसको नहीं रखना चाहता था तो वो उसको तलाक दे देता। इस तरह बेरहमी से उसको इन 3 औरतों को, 2 बेटियों को और अपनी बीवी को कत्ल नहीं करना चाहिए था। एक पर्सनल सवाल है आतिफ भाई, आपको आए हुए 1 माह या कुछ दिन हुए होंगे। आपसे पहले इस पुलिस स्टेशन में
लोगों का की तरफ से हाहाकार मचाया जाता था, बातें की जाती थी कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है। आपकी तैनाती होती है, आपकी तैनाती के बाद नो डाउट बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसा क्या है, आप शोर भी नहीं मचाते, आप का कोई ऐसा है भी नहीं कि बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर है, हर वक्त जो है वो प्रेशर डाल के रखता है, आप खामोश गो हैं, कम बातें करते हैं, लेकिन आपकी कामयाबियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि आज हमने देखा अफसरान बाला ने उसको एक्नॉलेज किया कि ये इंतहाई काबिल पुलिस ऑफिसर है। कौन सी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है, कौन सी जादू की छड़ी है, हमारे नाजरीन को बताएं ताकि बस बाकी SHOs को भी कन्वे किया जा सके कि भाई पैटर्न ये रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जी शुएब भाई, ये तो अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम और फजल है कि जो भी इंसिडेंट होता है हम उसको चंद घंटों में ट्रेस भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी पोस्टिंग अभी 20-25 दिन हुए हैं खुर्डियांवाला में, और एक लंबी फरिस्त है। अल्लाह ताला ने जो हमें कामयाबियाँ दी हैं, इंसान मेहनत से, लगन से, अपने पेशे से अगर मुखलस है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको कामयाबी देता है। अगर आप अपने पेशे से मुखलस नहीं हैं, अपने जो है जॉब को उसको टाइम नहीं देते, तो फिर कामयाबियाँ नहीं मिलती। इंसान जिस फील्ड में हो उसको टाइम भी दे और उसके साथ मुखलस रहे, तो फिर कामयाबी होती है। तो जो हमारी कामयाबी होती है शोर मचाने से तो नहीं होती, दुनिया खुद ही देख लेती है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं। नाज़रीन किराम, SHO थाना खुर्डियांवाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आतिफ खिच्ची टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे। आपने सुना, आपने देखा कि कैसे एक चैलेंजिंग केस था, इतना बड़ा केस, 13 कत्ल होते ही इलाका भर में कोहराम मचता है। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेती हैं, IG पंजाब नोटिस लेते हैं, आला हुकाम से रिपोर्ट तलब करते हैं, और इसी दौरान थाना खुर्डियांवाला पुलिस भरपूर हरकत में आती है। अभी डेड बॉडीज़ की तदफीन का अमल मुकम्मल नहीं होता कि वो मुलजिम जो शातिर था, जिसने ये प्लान्ड मर्डर किए थे और राह फरार इख्तियार की थी, पुलिस उसे धर दबोचती है। मुलजिम के खिलाफ एक मजबूत केस भी तैयार है ताकि उसे उसके किए की सज़ा दिलवाई जाए। नाजरीन, फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक जालिम शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। क्या मोटिव था, किस लिए ये कत्ल हुआ, पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन इस वक्त फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के अंदर मौजूद है, और हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुर्डियांवाला सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सप्रा मौजूद हैं। गुलजार भाई से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि एक शख्स ने 3 कत्ल कर दिए, और कत्ल होने वाले रिश्ते भी वो जो मुकद्दस समझे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस है, रिपोर्ट कैसे हुआ, और फिर पुलिस ने इस पे कैसे कैसे डेवलपमेंट्स की? जी शुएब भाई, ये 13/4 को इसी मंथ 5 दिन पहले आज से हमें 5 बजे सुबह एक कॉल मसूल होती है कि मक्कूआना अली गार्डन में जो ये मियाँ मस्तानी रोड है उसके ऊपर एक बंदे ने अपनी 2 बेटियों और एक बीवी को बजरिया फायरिंग कत्ल कर दिया है। इतला वक़ुआ पाकर जनाब SP साहब जड़ांवाला, जनाब DSP साहब सर्कल खुर्डियांवाला, SHO और हमारी टीमें जो हैं वो मौका पर रवाना हो जाती हैं। ये क्या कॉल ही मर्डर की थी या फिर ज़ख्मी थे, और जब पुलिस पहुंची तो तब तक कंफर्म हो चुका था? जब रिपोर्ट होता है तो इनिशियली रिपोर्ट ही मर्डर का था, या फायरिंग के नतीजे में कुछ ज़ख्मी थे, कुछ मर्डर थे, और तीनों बाद में जो है वो डिक्लेयर हुई हैं? नहीं, एक बड़ा ब्रूटल अटैक था जिसमें उसके जो बचने के वो चांसेस बिल्कुल नहीं थे, और हमें इतला भी यही मिली थी कि एक बंदे ने अपनी 2 बेटियों और उसकी जो बीवी थी उसको कत्ल कर दिया। जाहिर है वो बहुत बड़ा वाक़या था, ट्रिपल मर्डर का है, तो आला हुकाम ने फौरी तौर पर नोटिस भी लिया। SP जड़ांवाला मौका पर पहुँचे, आपकी टीम सारी वहाँ पे मौका पर पहुँची। क्या जब आपने देखा तो क्या वहाँ पे क्या मनाजिर थे, क्राइम सीन को कैसे प्रिजर्व किया गया, और कैसे आगे फर्दर डेवलपमेंट्स हुए? जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसका नोटिस लिया होगा जनाब वज़ीर आला पंजाब, IG साहब पंजाब, RP साहब फैसलाबाद, CP साहब फैसलाबाद, ये जितनी भी हमारी ऊपर हमारी चेन थी, कमांड थी, सब ने फर्दर इसका नोटिस भी लिया और हमसे पूछा भी कि ये क्या हुआ है। जब हम मौका पे पहुंचे हैं तो ये 3 डेड बॉडियाँ मौका पे पड़ी थी एक रूम के अंदर, 2 सगी बहनें थीं और एक उनकी वालदा थी। ये क्या उम्रें क्या थीं जो बच्चियाँ थीं कत्ल होने वाली, क्या क्या उम्रें थीं उनकी?
बच्चियों में एक जो उम्मे हबीबा है उसकी उम्र 17 साल थी और जो आयशा सिद्दीक़ा है उसकी उम्र 14 साल थी। 14 और 17 साल की बच्चियां और उनकी माँ, और कातिल जो है वो खुद उन बच्चियों का बाप और उस खातून का हस्बैंड निकला। जी बिल्कुल, जी जावेद इकबाल उसका नाम है और उसने उनको अली सुबह अटैक करके कत्ल कर दिया और उसके बाद वो फ़रार हो गया अच्छा, था। मौका से वो फरार हो गया था। जी बिल्कुल, मौका से फ़रार हो गया। कत्ल ये जैसे आप बता रहे हैं ब्रूटल मर्डर थे, तो क्या ये फायरिंग करके कत्ल किया गया? किस टाइप के वेपन्स यूज़ किए गए? कितनी जो हैं वो बुलेट्स उनको लगी? ये तकरीबन 15 से 20 बुलेट्स जो हैं वो तो हमें पता चला है कि वो लगी हुई थी उनको, और उसने बड़ी बेदर्दी से फायरिंग करके उनको कत्ल किया है। आतिशी असला इस्तेमाल किया गया इसमें। इस तरह का जब बड़ा वाक़या होता है गुलजार भाई, तो ज़ाहिर है वो एक पंजाब लेवल पे पूरे पे जिसे हम कहते हैं कि शोर मच गया था, सबकी नज़रें यहाँ पे थीं। तो ऐसे सेंसिटिव केसेस में फिर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। आपने जाके मौका मुलाजा किया होगा, फिर आगे फर्दर इसको कैसे चलाया जाता है? क्या पुलिस फिर खुद इंटरवीन करके डेड बॉडीज़ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, जैसे पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद के सारे प्रोसेस जो हैं उनको खुद पुलिस अपनी निगरानी में फिर कंप्लीट करवाती है? जी बिल्कुल जी, क्राइम सीन पे जो हमारी टीमें PFS से आई हैं वो, या जो CP ऑफिस से हमारी एक टीम आती है जिनके पास ये किट होती है, जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हमने अपने निगरानी में उसको करवाया। जो क्राइम था उसको प्रिजर्व किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए, जो मौके से हमें एम्प्टी बुलेट्स मिली वो कब्ज़ा में ली गई, जो मुतवफ़ी थे, मकतूलीन थे, उनकी हमने वो जो फार्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी लीगल होता है वो हमने किया उसका। क्या उस वक़्त जो इलाका मकीन है, ज़ाहिर है आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपको केस को हर एंगल से देखना पड़ता है, बारीक बीनी से मुशाहिदा करना पड़ता है। एक तरफ आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का दिमाग हर तरफ चल रहा होता है। मोहल्ले में होने वाली सुन गुन, चह मगोइयाँ, इवन आप एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। उस वक़्त सरे दस्त जब तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ तब तक मोटिव क्या सामने आ रहा? तब तक भी यही था कि इन बच्चियों को उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। जो हमें साइड से ये आवाज़ें आ रही थी ना, वो इसी तरफ ही जा रही थी। ये ऑनर किलिंग बेसिकली बनती है? जी बिल्कुल, ऑनर किलिंग है, बिल्कुल जी। फिर उसके बाद ये फ़रार हो गया, कितना बड़ा चैलेंज था, कितना इसको एक्सेप्ट किया आपने कि ये इतना बड़ा सानिया है और ये मुलज़िम अगर खुदा न खास्ता हाथ से निकल गया, स्लिप हो गया, तो बहुत सुबकी होगी, बहुत ये पुलिस के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। किस इंटेंसिटी से फिर इसको तलाश किया गया और कहाँ कहाँ तलाश किया गया, कितना टाइम लगा? देखें जी, ये जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हमारे अफसरान फौरी तौर टीमें तश्कील देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ। एक टीम जो थी वो, उसमें मैं खुद उनके पोस्टमार्टम करवा रहा था। इसके अलावा 3 टीमें थीं जो हमारे SH साहब, DSP साहब के ज़ेर निगरानी वो रेड्स कर रहे थे। IPOs के तहत भी हमने किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमने किए। इसके अलावा जिधर हमने उसके CDR को या जो हमें ये टेक्निकल वसाइल जितने भी थे उनको आप पूरा बरूए कर लाए, आप अपनी ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को भी आपने एक्टिवेट किया। लेकिन जो उस वक़्त की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि इतना बड़ा सानिया हुआ और मुलज़िम मौका से फ़रार हो गया। जी बिल्कुल, इतना बड़ा इंसिडेंट था और उसने फ़रार तो होना ही था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने जो कोशिश की, जो हमने मेहनत की, तो उसको चंद ही घंटों के बाद मैं समझता हूँ कि हमने तदफीन से पहले मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया था। अभी तदफीन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था और आपने, आपकी टीम्स ने जो है मुलज़म अरेस्ट कर लिया? जी बिल्कुल जी। कहाँ छुपा बैठा था ये? ये इधर जब उसने इंसिडेंट किया है उसके बाद ये 2-3 जगह जो थे अड्डे थे उधर भी गया है, हमें पता चला है। फर्दर इसने जो रब्ता किया था, ये मोबाइल था, वो चीज़ें भी हमने ट्रेस की, लेकिन इस नंबर पर बंद कर दिया। तो हमने फिर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं या ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होती हैं, फिर उससे हमने इसको गिरफ़्तार भी कर लिया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है गुलजार भाई पुलिस की, खुड़ेवाला पुलिस की, कि आपने एक ट्रिपल मर्डर का मुलज़िम जो है उसे आपने चंद घंटों के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। वरना खुदा ना खास्ता अगर ये स्लिप हो जाता, निकल जाता, कहीं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटा देता, तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता। ज़ाहिर है किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल हो सकता था, खुदा ना खास्ता कहीं मुल्क से बाहर भाग सकता था, और तब तक जो है वो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान रहता जब तक ये पकड़ा नहीं जाता। आपने अपने तौर पे पूरी एफर्ट्स पुट की और अल्लाह ने उसका सिला ये दिया कि मुलज़िम पकड़ा गया। बुनियादी तौर पर गैरत के नाम पे कत्ल ये क्या है? क्या हम किसी पे भी अपने रिश्तेदार पे इल्ज़ाम लगाकर, बदगुमान होकर, किसी से अफवाह सुनकर, क्या इतना आसान है हमारी सोसाइटी में कि किसी के ऊपर भी आपको इल्ज़ाम लगाएं कि जी तुम बदचलन हो और हम उसे मार दें? ये क्यों ऐसी टेंडेंसी जो है वो परवान चढ़ रही है? देखिए जी, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। इस तरह के मैं समझता हूँ कि बदगुमानी एक गुनाह है, उससे बचना चाहिए। बदगुमानी में आके हमें ये अपनी फैमिली के ऊपर इस तरह का जुल्म ज़्यादती नहीं करना चाहिए।
یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو شک گزرتا ہے، یہ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے. اتنا سنگین قسم کا جو اقدام ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے. گلزار بھائی، آپ نے ظاہر ہے انٹروگیٹ بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. ملزم کیا آپ کو لگتا ہے کوئی نشے کا عادی تھا، فرسٹریٹڈ تھا، کیا ہے، ایک کروول تھا؟ کیا بنیادی طور پہ اس کی باڈی لینگویج کیا کہتی ہے کہ وہ کس ٹائپ کا کرمنل تھا کہ اس نے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ترس نہیں کھایا، اپنے پیارے رشتے جو ہیں اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دیا؟ جی بالکل کرول ٹائپ ہی آدمی یہ لگتا ہے جس نے اتنا ظلم کر دیا ہے. ورنہ کوئی اتنا جلدی تو نہیں اقدام اٹھاتا اس طرح کا. اچھا، اس طرح اس نے جو ویپن یوز کیا مرڈر کے لیے، کیا پولیس نے وہ ریکور کر لیا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایفرٹ وہ پٹ کی گئی جو اس کی گرفتاری تک تھی؟ اب دوسرا پولیس کا اصل کام شروع ہوتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ شواہد کو پروڈیوس کرنا کورٹ میں کہ ایسا کرول بچ نہ سکے. اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ کس طرح کا آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ورک کیا؟ جناب ایس پی صاحب کی زیر نگرانی یہ جو مثل ہے یہ کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں ان کو ہم مثل کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مضبوط کیس تیار کر کے یہ عدالت میں پیش کیا جائے. مرڈر ویپن ریکور کیا جا چکا ہے؟ ملزم ریمانڈ جسمانی پہ ہے جی، بالکل ہو گیا سب کچھ. اچھا، وہ ملزم کو ریمانڈ پہ رکھا گیا ہے. یہ تھانہ کھڑیاں والا میں گلزار بھائی بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ مرڈر کی ریشو کچھ بڑی ہے، لیکن جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی کیس پینڈنگ نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے. جتنے بھی مرڈر سے جو بلائنڈ بھی تھے، ایون کچھ وہ نہ صرف آپ نے ٹریس آؤٹ کیے بلکہ ان کے ملزمان کو بھی اریسٹ کر لیا. کیا پریورٹیز کو سیٹ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جتنا ہینیس کرائم ہوگا اتنی جلدی اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، یا پھر یہ واقعی میں جو ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم سٹرونگ ہے، آپ کے سورسز سٹرونگ ہے، اس لیے آپ کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے؟ جی شعیب صاحب، ہمارے مارچ میں 3 مرڈر تھے اور ابھی تک اپریل میں بھی 3 ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ جتنے کیسز ہیں ان کے ملزمان کو پکڑ بھی لیا ہے. کچھ تو ریمانڈ پہ ہیں اور باقی جوڈیشل ہو چکے ہیں. تو جو اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اپنی پوری جو ہے وہ وسائل کو بروکار لاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک پھر ہمیں کامیابی سے وہ نوازتے ہیں. گلزار بھائی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، سب انسپیکٹر مار گلزار سپرا انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کھڑیاں والا ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک ظالم شخص نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا، اور اس قتل کا موٹیو، محرک صرف اور صرف ایک جھوٹی انا، جھوٹی غیرت ہے. غیرت کے نام پہ قتل، ناظرین کرام، ہمارے ہاں ایک معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ تھا جس نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا تھا. اعلیٰ پولیس حکام فوری طور پہ حرکت میں آئے، اس کے نوٹسز ہوئے، ایون وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لیا، اور یہ فیصل آباد پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اگر یہ ملزم پولیس کی پہنچ سے دور ہو جاتا، راہ فرار اختیار کرتا، تو شاید پولیس کی صبح کی ہوتی. لیکن یہاں پہ کھڑیاں والا پولیس کو کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی. انہوں نے چند گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کیا. اس کے خلاف اب ایک مضبوط کیس تیار ہے تاکہ جو جرم اس نے کیا ہے اسے اس کی سزا دلوائی جائے. ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون ایس پی جڑاوالا حافظ امتیاز کے ساتھ موجود ہے، جن کی سربراہی میں تھانہ کھڑیاں والا کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. ایک 13 قتل کا اندوہناک واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ پولیس کے لیے چیلنج ہوتا ہے. ٹرپل مرڈر جس علاقے میں بھی ہو جائے وہاں کی پولیس کی بلا مبالغہ دوڑیں لگ جاتی ہیں، لیکن اس کیس میں پولیس نے کتنا کوئکلی رسپونڈ کیا، کس طرح سے قاتل کو پکڑا اور سارا عمل مکمل کیا، ایس پی جڑاوالا سے دریافت کرتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا، یہ کیس جس نے ایک دم سے ہائپ پکڑی اور پھر محض چند گھنٹوں میں آپ کے آفس کی جانب سے، تھانہ کھڑیاں والا کی جانب سے خبر آتی ہے کہ کیس سالوڈ، یہ کیا تھا؟ یہ منڈے کو 13 اپریل کی بات ہے. صبح میں اٹھا ہوں نماز کے ٹائم تو میسج ملا جی اس طرح ٹرپل مرڈر ہو گیا. تو ہائی کورٹ میں نے جانا تھا تو فوری میں تیار ہوا ہوں. پہلے میں نے کہا چلو موقع پہ چلتے ہیں. مکوانا کے پاس وہ جو آبادی ہے گھر پہ گیا ہوں. اندر گیا ہوں تو 3 ڈیڈ باڈیز ہیں فیمیلز کی. ایک والدہ ہے، 2 اس کی بچیاں ہیں. والدہ کی عمر 35-36 سال ہوگی. ایک بچی 16-17 سال کی ہے، دوسری 12-13 سال کی. بیڈ پہ پڑی ہیں اور بلٹ فائر آرم انجری سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
तो बच्चे दूसरे छोटे थे, उनसे मिला, बच्चों और महल्लेदार मिले। बच्चों ने बताया कि जो हमारे वालिद हैं उन्होंने फ़ायर करके इनको कत्ल किया है और बाहर निकल गए। तो वो मौके से फ़रार थे। उसी वक्त SHO साहब पहुंच गए, DSP साहब पहुंच गए। हमने टीमें बनाई कि सबसे पहले मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाए। तो पूरा दिन राब्ते में रहे। मैं हाई कोर्ट चला गया, वापसी पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक हमने मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया। उसमें सबसे बड़ी जो है गाइडेंस हमारे CPO साहब की होती है। CPO साहब ने हर मामला जो हीनियस क्राइम होता है उसमें वो खुद जो है टीमें जो बना उन्होंने रखी हुई हैं ट्रेसिंग के लिए, वो CPO ऑफिस से ही रवाना कर देते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट्स और जितने भी जदीद वसाइल हैं वो आपको फौरी तौर पे मुहैया कर देते हैं। फौरी जो है ना पहुंच जाते हैं, तो उस वजह से हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो वो सारी वो चीज़ें भी हमारी टीम जो है SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इनकी टीम भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। मिल के सारों ने जो है शाम को अल्हम्दुलिल्लाह मुलज़म को अरेस्ट कर लिया। अच्छा सर, SP जड़ावाला की सीट जो है, इनकी जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आता है वो बदकिस्मती से हॉट वाटर्स हैं सारे, हमेशा कुछ ना कुछ ओल्ड एनिमिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत खौफनाक किस्म के तसादम हो जाते हैं लोगों के। माजी में भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वारदातें यहाँ पे हुई। अभी सर लगातार आपकी टीम की जानिब से जो है वो गुड न्यूज़ देखने में आ रही हैं। एक तरफ आप पुराने POs को जो है वो जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं गड़े मुर्दे भी पुलिस उखाड़ रही है, पुलिस के रडार से मुलज़िमान बच नहीं रहे। दूसरी तरफ रोज़मर्रा जो क्राइम्स हैं, हमने देखा 2 माह में कत्ल की ऐसी संगीन वारदातें थी जिनका आपने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए, विदिन 24 आवर्स रिजल्ट सामने रख दिया। क्या किसको क्रेडिट देते हैं, कैप्टन और जो जूनियर टीम होती है उसका कॉम्बिनेशन क्या बहुत अच्छा है, या फिर पुलिस को वसाइल ज़्यादा मुयस्सर आ गए हैं, या फिर उन्हीं वसाइल में रहते हुए सिर्फ डेडिकेशन बढ़ गई है? जैसा कि पहले मैंने बताया, यहाँ एक निज़ाम CPO साहब ने ऐसा बना दिया है कि सिर्फ SHO पे बर्डन नहीं होता, सारे एक्टिव हो जाते हैं जब भी हीनियस क्राइम होता है। तो जब साहब की जो हो जाती है इन्वॉल्वमेंट, तो कोई उसमें सुस्त भी हो उसे भी फिर काम करना पड़ जाता है। अगर एक लीड हमें दे रही है टेक्निकल टीम CPO ऑफिस से, तो हमको लीड आगे लेके जाना होता है। तो बाकी जो SHOs लगे हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, सारे इफ़ेक्टिव हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम भी उन्हें गाइड करते हैं। उसी वक्त जो ही मौके पे पहुंचते हैं तो हम टीमें रवाना कर देते हैं कि ये चीज़ें इन पे काम शुरू कर दो। फिर फीडबैक लेते रहते हैं, मैं इनसे लेता रहता हूँ, CPO साहब मुझसे लेते रहते हैं। तो वो फीडबैक लेना देना और उसी वक्त टीमें बना के वो जो गाइडेंस है सीनियर अफसरान की, उस पर चलते रहना। कुछ चीज़ें क्योंकि मिस कर देते हैं, जितने एक मामलात होते हैं SHO और नीचे तफ्तीशी लेवल पे, तो वो गाइडलाइन जो है वो बड़ा हेल्प करती है। कोई चीज़ इस तरह मिस नहीं होती तो जल्दी हम पहुंच जाते हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि मैं 2 माह में देखा है, आलमोस्ट 2-2.5 माह में तकरीबन 25 से 30 मर्डर जड़ावाला में हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा मर्डर नहीं जो अनट्रेस ना हो, कोई ऐसा मर्डर नहीं जिसके मुलज़म ना पकड़े गए हों, कोई ऐसा मुलज़म नहीं जो मुकदमा नहीं है जो चालान ना हुआ हो। तो जितना भी हीनियस क्राइम है ट्रेस हो रहा है, मुलज़म पकड़े जा रहे हैं, चालान हो रहे हैं। बाकी PO की गिरफ़्तारी, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। पुराने PO 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पुराने PO जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो है, फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात के ख़िलाफ़ ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन किया कि तकरीबन 90% मनशियात को ख़त्म कर दी। हमने देखा कि जो मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग थे वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो वारदातों में अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करके, हम जब भी किसी हीनियस क्राइम को देखते हैं ज़्यादातर उसमें ये सामने आता है कि वो मुबैना तौर पर मनशियात का नशे का आदी था और उसने ज़रा सी बात पे भड़क के जो है वो कर दिया। क्या कोई हुकूमती लेवल पे ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हों, इन लोगों की काउंसलिंग हो, इन्हें कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों कि ये जो दोबारा टारगेट पुलिस बनती है, वो नशे का आदी है, नशा उसे नहीं मिल रहा, ये पुलिस का क्रेडिट है कि नशा नहीं मिल रहा, लेकिन वो नशे के हाथों तंग आके फिर कोई जुर्म करता है, सवाल फिर पुलिस पे उठता है। क्या हुकूमत को इस इन खतूत पे सोच कर कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज़्म नहीं डेवलप करना चाहिए कि इनकी रिहेबिलिटेशन हो, इनकी काउंसलिंग हो और इस मामले में जो है वो पूरा
मुल्क पूरी कौम जो है वो सुख का सांस ले सके? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, रिहैबिलिटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन ये मैं तो नहीं मशवरा दे रहा, तो ये तो आपका काम है, ये लाएं, जो जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है उसके नोटिस में होना चाहिए, है भी है, कर भी रहे होंगे, लेकिन जो हमारी ज़िम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। मैंने पुलिस के एंड पे सर इस सवाल इसलिए किया कि आपको बेहतर पता होता है कि जो मुलजिमान हैं उनमें से कितनी परसेंटेज है जो है वो उनका बैकग्राउंड वो कहीं ना कहीं कि वो माजी में इस्तेमाल करता रहा, वो मनशियात के आदी अफराद जो है वो ज़्यादातर जराइम में मुलव्वस होते हैं। हाँ, मंशियात के आदी, चूँकि उनको नशा चाहिए होता है, नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो छोटी मोटी जितनी भी चोरी चकारी है वो करते हैं, छोटी मोटी स्नैचिंग है वो कर रहे होते हैं, उसी से उनका काम चलता है। जहाँ ज़्यादा नशेई होंगे वहाँ ज़्यादा चोरी होती है, ख़ासकर चोरी, ताले टूटने, खेतों से कोई तार ले जानी, कोई पीटर उठा लेना, कोई मीटर उठा लेना, इसी तरह लोहा वो बेचते हैं, तारें बेचते हैं, कोई बकरी उठा ली, छोटा मोटा ये क्राइम जो है चोरी का ये होता है उधर ही जहाँ पे नशेई होते हैं, और ये नशे वाले ही करते हैं। आखिर में सर तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि जुर्म बढ़ गया है, जबकि हम ऑन ग्राउंड पुलिस के साथ होते हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस की कार्रवाइयाँ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हम टीम मुजरिम कौन ये कहती है कि जुर्म की रिपोर्ट बढ़ गई है, लोगों का एतमाद पुलिस पे बढ़ गया है, अब वो रिपोर्ट करते हैं। पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों पे लोग भरोसा नहीं करते थे, अब भरोसा ज़्यादा करते हैं, रिपोर्ट ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को बज़ाहिर ये लगता है कि जुर्म बढ़ गया है। क्या पैगाम देंगे लोगों को, किस हद तक वो मज़ीद ट्रस्ट करें अपने कानून पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, पुलिस पे, और रिपोर्ट करें, ताकि वो रिपोर्ट करें तो फिर उनके जो मसाइल हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसका अजाला किया जा सके, उन्हें इंसाफ दिलवाया जा सके। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब लोग जो हैं हर चीज़ रिपोर्ट करते हैं। दूसरी जो हकीकत ये है कि पुलिस कोई भी अब जुर्म को है जो है उसे छुपाती नहीं है, मख्फी नहीं रखती, जो भी रिपोर्ट होता है हम उस पर FIR देते हैं। पहले ये होता था रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, अब जिसकी कोई कॉल आ गई है 15 पे, जिसने रिपोर्ट की है, हम उसके पीछे जाके, वो नहीं भी करवाना चाहता, हम कहते हैं बस आपने कॉल की है, हमें ये FIR देनी होगी, उसमें देखेंगे तफ्तीश में बनता नहीं बनता। इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है, क्राइम तो वही है, उसी तरह ही है, क्राइम बल्कि कम हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन हम जो है वो हमने फ्री की हुई है, रजिस्ट्रेशन फ्री की वजह से ये फिगर बढ़ते हैं, और उसके फ़ायदे भी हैं कि जो जितना कोई करता है वो उतना उसे भुगतना पड़ता है। बाकी क्राइम ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुआ है। लोगों को क्या मशवरा देंगे कि इसी तरह वो कोऑपरेट कोऑर्डिनेशन जारी रखें पुलिस पे, ताकि हम पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकें? बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल जो है हर क्राइम जो है रिपोर्ट करना चाहिए, हम तक पहुंचना चाहिए, हमें बताना चाहिए, और हम उनका साथ देते हैं और देते रहेंगे। इसी में ही बेहतरी है, और इसी की वजह से आगे माहौल बेहतर होगा, क्रिमिनल जो हैं वो अपने उनको सज़ा मिलेगी। तो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो है अवेयरनेस लोगों को अब है कि पुलिस को जो कॉल की जाती है उस पर रिस्पॉन्ड भी होता है और उस पर अमल भी होता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, SP जड़ावाला हाफिज़ इम्तियाज़ टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे तेहरे कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़या थाना खुर्डियावाला की हदूद में पेश आता है। SP जड़ावाला मौका पर पहुंचते हैं, अपनी टीम्स तश्कील देते हैं और महज चंद घंटे के अंदर कातिल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने आवाम के लिए एक मैसेज भी दिया कि पुलिस आपकी है, पुलिस पे भरोसा रखिए, आप पुलिस पे भरोसा करेंगे तो पुलिस अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगी। पुलिस वो ब्रिज है जो हुकूमत और आवाम के दरमियान अमन कायम करने के लिए सबसे मौसर किरदार अदा करता है। और फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पर SP जड़ावाला के अंडर जितने जुरिस्डिक्शंस हैं और थाना खुर्डियावाला जिसकी महज चंद माह में कारकर्दगी हमने नाजरीन को बताई कि बहुत से ब्लाइंड मर्डर्स और हीनियस क्राइम में मुलव्वस अफराद को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त नहीं दिया गया और मुल्ज़िम कानून के कटहरे में। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे मकुआना में एक जालिम शख्स ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की 2 बेटियां और 2 बेटे शायद अभी तक सर्वाइवल में हैं। मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू आपने सुनी, पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ भी आपने जाना। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ ऑनर किलिंग यानी गैरत को बुनियाद बनाकर कत्ल कर देना
कितना सहल है कि कोई भी हथियार उठाता है और रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर देता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ठहराव पैदा करें, रिश्तों का तकद्दुस जानें, उनका एहतराम करें ताकि मुआशरा पुरअमन हो सके। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।